Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Before lunch, there was one question which was asked. Let's answer that. What was the question? Can you just repeat that? Can you repeat the question, please? Yes, sir. Calculate dynamical stability up to 20 degree. That. नहीं वो तो कर दिया था ना हमने. उससे पहले वाला. वो तो कर दिया था. वो तो कोई some question was asked in the class. So I said कि अब lunch के बाद करेंगे उसको. His earlier question was theta and dz was given, and vessel has loaded to this displacement, but the kg is found to be 6.8. Actual kg was given. Calculate the dynamical stability at 60 degree. नहीं, not that. नहीं सर, ये सर जैसे लास्ट में सर किसी ने कुछ क्वेरी पूछा था 20 डिग्री पे है 560 टन मीटर रेडियन, तो उसका मतलब क्या है सर? वर्क मतलब? हाँ, मतलब क्या है? ओके उसका मतलब क्या है? ओके. So basically, if this is my vessel, okay, and I put this force on this vessel, okay. Because of this force, this vessel goes 10 degrees to starboard. So if this vessel is 0 degrees upright and it has gone to 10 degrees, how much work has this done? That work is equal to, let's say, 560 ton meter radian. The work which has been done. Or sir, same amount of work to be done to bring it upright. Absolutely right. Now I need 560 ton meter radian of work to bring her upright. This work I need to do in the opposite direction to bring her upright. वर्क मतलब सर बेसिकली वही है ना सर, हम लोग को वेट डालना पड़ेगा. This I can do by 3 ways. Either I do ballasting on this side, or I do deballasting on this side, or I transfer weight from here to here. There are 3 ways only to make this vessel come back. How much is that amount of work that I have to do? 560. That is the meaning of the dynamical stability. So in our question, it is a work done from bringing ship from 6 degree to 20 degree, right? In our case, it is from 6 to 20. Okay. In our case, it is from 6 to 20. सर जो लिस्टिंग मोमेंट होता है, it is different from this amount? No. Listing moment, it's a moment. So moment की definition क्या है? Force into lever. So W into D is a listing moment. W is the force, the weight that I'm adding on this side, and D is the lever through which that force is acting from the center line, or if I'm shifting from port to starboard. So that is a moment. That is a force into distance, lever. सर अगर सर उसमें अगर ये एंगल मतलब पहले जहाज अगर अपना अपराइट होता तो उसके बाद अपन से ये कर्व मतलब बनाते और फिर उसमें कहा जाता है कि आप ना इसकी डायनामिक स्टेबिलिटी निकालिए 60 डिग्री तक, तो अपन सर 0 डिग्री से 60 डिग्री तक अपन एंगल निकाल अपना एरिया निकाल देते, बस है ना? 0 30. सर लेकिन
तो लेकिन उसमें मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा सर? मतलब अपन जब जहाज अपना जब चलता है मतलब उसमें समुद्र में, तो वो नॉर्मली मतलब ना 20-30 डिग्री मतलब हैवी वेदर में मतलब होता है इधर उधर, तो वहां पे अपन को वर्क डन अपन तो करते नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक सर एक इधर से आएगी, उसने वहां घुमा दिया, उधर से आई उसने सही कर दिया। तो अपन ने क्या किया, मतलब कोई वर्क डन तो किया नहीं अपन ने, तो इसका मतलब क्या हुआ ये इसको निकालने का? तो बेसिकली दैट इज दी ये वर्क डन बेसिकली सर उसमें पोर्ट में किया जाता है ना ये सब? नहीं, that is the amount of work done which you will do. So suppose it's basically dynamical stability is used in damage stability calculations. जब डैमेज हो जाता है मेरा जहाज, जिसके कारण मेरा जहाज स्टारबोर्ड चला गया, क्योंकि मेरे स्टारबोर्ड में डीबी मेरा बिल्जिंग हो गई, तो बिकॉज मेरे बिल्जिंग हो गई तो सब मेरा जहाज स्टारबोर्ड चला गया। तो जितना वर्क डन हुआ उस जहाज का टू गो टू दैट एंगल, उतना ही मुझे काम करना पड़ेगा ऑन द पोर्ट साइड टू राइटन इट। तो अगर मैं 20 डिग्री पे गया हूं तो मुझे 20 को 0 पे लाना पड़ेगा। यस सर। तो वो 20 to 0 will be my work done in bringing it upright. ओके सर, मतलब सही है, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन द डैमेज स्टेबिलिटी, अदरवाइज नॉर्मली तो सर कोई करता नहीं है। Correct. It is applicable in क्योंकि damage सर नॉर्मली stability. तो राइटिंग मोमेंट तो हमेशा जीरो होता नहीं ना सर हमारा, तो इसलिए तो अपराइट होता नहीं, अपराइट पे कंडीशन में फिर जा जाता है जहाज। So basically इसको हम तभी कहते हैं रेजिड्यूअल डायनामिकल स्टेबिलिटी। इसको आरडीएस का नाम भी दिया जाता है, रेजिड्यूअल डायनामिकल स्टेबिलिटी। सो इस क्वेश्चन में जो हमने क्लास में किया, हमने 6 डिग्री से लेके उसको 20 तक निकाला, दैट इज द रेजिड्यूअल डायनामिकल स्टेबिलिटी। रिमेनिंग डायनामिकल स्टेबिलिटी क्या है? 20 माइनस 6। ओके सर, मतलब एरिया अंडर मतलब ये अपना 6 से 20 का माइनस द एरिया 0 से 6 का, ये अपना रेजिडुअल वो हो जाएगा। नहीं नहीं, जो हमने निकाला था वो उसको आरडीएस कहते हैं। अच्छा, वही मतलब वो रेजिडुअल है। वो रेजिड्यूल है, वो रेजिड्यूल है, वो रिमेनिंग है। वो मेरी रिमेनिंग जो एरिया बचा है 6 से लेके 20 तक, जो 14 डिग्री की रेंज है, उस 14 का एरिया क्या है, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके दैट गिव्स मी द रेजिड्यूअल डायनामिकल स्टेबिलिटी, आल्सो कॉल्ड एज डायनामिकल स्टेबिलिटी। ओके सर। उसको ये भी कहते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? Any other doubt in the question? Okay. अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन करता हूं। सपोजिंग इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिया होता ओनली वर्टिकल शिफ्ट ऑफ वेट, नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ वेट। आई रिपीट, इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिया होता ओनली वर्टिकल शिफ्ट ऑफ वेट अपवर्ड बाय 3 मीटर्स, हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं दिया मैंने क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका कर्व कौन सा बनता? सर उसमें से हॉरिजॉन्टल वाला जो टेबल में कंपोनेंट बनाया है वो हटा देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हटा दो, यानी कि माइनस जीजीएच, हाँ, माइनस जीजीएच कॉस थीटा गायब हो जाता। यस सर। तो मेरी 0 की वैल्यू जो होती वो पॉजिटिव होती, क्या होती?
पॉजिटिव होती सर। सर पॉजिटिव होती। जीरो होती मतलब जीरो 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 होती जीरो जीरो होती। और 5 की मेरी जो वैल्यू है वो क्या होती? वो सर पॉजिटिव होती। नेगेटिव होती। वो पॉजिटिव हो जाती। हाँ वो पॉजिटिव होती सर। यस सर। सारी और फिर बाकी सारी पॉजिटिव होती। यस सर। यस सर। तो मेरा जो कर्व बनता वो कौन सा कर्व बनता? सर बेल शेप तो नॉर्मल कर्व बनता है। T1 नॉर्मल Normal वाला टाइप T1 T1 नॉर्मल T1 बनता। इज दैट ओके? यस फिर Yes, T1 sir. बनता, फिर मेरा नॉर्मल T1 बनता। ठीक है। और फिर अगर मेरा नॉर्मल T1 बनता और फिर मैं आपसे पूछता कि डायनामिकल स्टेबिलिटी अप टू 20, तो कैसे निकालते? 0 to 20 0 टू 0, 10 और 20% निकाल लेते, 3 को डाल के लीवर। 0, बिल्कुल ठीक। 0, 10, 20, 141 तीनों का करके बना निकाल देते। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। ये एक वेरिएशन है। अच्छा, दूसरी वेरिएशन, सपोजिंग इसी क्वेश्चन में मैं कोई वर्टिकल शिफ्ट नहीं देता आपको, सिर्फ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट देता, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ले लेते सर। बिल्कुल ठीक। सारे हॉरिजॉन्टल वाले निकालते सर। बिल्कुल। वर्टिकल वाला कुछ वो कॉलम जो है गायब कर देते। यस सर। तो वो वर्टिकल वाला जो है प्लस माइनस GGV साइन थीटा वाला कॉलम ही गायब हो जाता पूरा। करेक्ट। तो उसमें आपका लिस्ट आ जाती। लिस्ट वाला बन जाता सर T3। सर 5 डिग्री पे नेगेटिव आता। उसका लिस्ट बन जाती, लिस्ट बन जाती। ठीक है, बिल्कुल ठीक। एंड देयरफॉर वो ऐसे है। सो बेसिकली ये वेरिएशंस पॉसिबल हैं। These are the variations which are possible. Okay. सर यहाँ पे केजी का सर कोई यूज तो हुआ नहीं इस क्वेश्चन में, जो केजी दिया ना उसने वो 7.2। इस क्वेश्चन में केजी का यूज हुआ नहीं, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं हुआ। अब तीसरी वेरिएशन इसी क्वेश्चन में तीसरी वेरिएशन, सपोजिंग वो कहता दैट the weight has been shifted in such a way that the center of gravity has moved 13 centimeters to the port of centerline and 15 centimeters downwards. तो इसका क्या मतलब है? तो सर मतलब एक तरीके से केजी नीचे आया है तो प्लस होगा, जीजीवी वाला कंपोनेंट प्लस हो जाएगा और वो वाला हॉरिजॉन्टल वाला तो माइनस ही होगा। डिस्टेंस में 13 मिल गई सेंटीमीटर में। तो सर ये मतलब जो ये GG1, GGV और GGH दिया हुआ है सर, ये बिल्कुल GGV ठीक। और GGH दिया हुआ है। तो इसका मतलब है GGV is equal to 0.15 मीटर एंड डाउनवर्ड है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा सर, वो प्लस रहेगा, प्लस पॉजिटिव हो रहेगा। जाएगा। प्लस रहेगा। करेक्शन जो है वो नीचे जा रहा है तो देयरफॉर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.15 GGV। करेक्शन। सो ये प्लस इसका साइन। अच्छा, और GGH तो हमेशा ही माइनस होता है और वो होगा 0.13। 0.13।
तो ये थर्ड वेरिएशन है, मतलब इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में वर्ड्स को घुमा फिरा के आपको ये दे देगा जीजीवी और जीजीएच, इसमें वो डब्ल्यूडीवी का कोई रोल नहीं है। काम भी आसान किया है सर, तो और इसमें वर्डिंग आपका भी घुमाई हुई है। वर्डिंग घुमा दी है और आपका काम आसान कर दिया है। हमें जब कैलकुलेट करना होगा तो वेट ट्रांसफर डिस्टेंस दिया होगा, और जब जीजीवी की वैल्यू तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंशन किया होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो या तो ये 3 वेरिएशंस में खेल खेलेंगे। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, ये जो है प्लस जीजीवी साइन थीटा बन जाएगा, ये जो है माइनस जीजीएच कॉस थीटा का कॉलम बन जाएगा। एंड अब आप चालू हो जाओ, यू नो हाउ टू डू इट। सर यहाँ पर जो इन्हें 30 सेंटीमीटर टू द पोर्ट ऑफ सेंटर लाइन मतलब जो गया है, तो अपन जो स्टारवर्ड साइड के अपन जो कर्व बनाते हैं मतलब ऊपर बनाते हैं, मतलब ये बेस लाइन के ऊपर, उसी को अपन मतलब वो मान लें कि ये पोर्ट का है, मतलब ये दैट्स राइट। स्टारवर्ड वाले, सो बेसिकली है ना? आपका जो आंसर आएगा वो 6 डिग्रीज टू द पोर्ट लिस्ट है। पोर्ट में आएगा सर। यस सर। वो आपकी जो लिस्ट है वो 6 डिग्रीज टू द पोर्ट है, वो आपका आंसर है। सर ग्राफ में मेंशन तो नहीं करना ना, ये ग्राफ पोर्ट का ग्राफ है, स्टारबोर्ड साइड का ग्राफ है। नहीं वो व्हाटएवर नहीं लिस्ट इज करना। शोइंग इट जो लिस्ट जो भी वैल्यू आ गई उसके साथ में ब्रैकेट में डाल दिया पोर्ट। ओके हाँ, सर। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में से मतलब बनाएंगे ग्राफ, मतलब हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा कर्व, और वो हाँ आपकी सर। लिस्ट जो है वो पोर्ट है। जो भी क्वेश्चन में दिया है दैट विल बी द लिस्ट। जो भी उस तरफ क्वेश्चन में में। जो है बस उसी तरफ की वो लिस्ट है। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। ऑलराइट, सो ये हो गई थर्ड वेरिएशन। ओके, ओके। अब ओके, अब आते हैं अच्छा, अभी जरा हिंडशिप की स्टेबिलिटी बुकलेट निकाल लो। हिंडशिप स्टेबिलिटी बुकलेट मैं भी निकालता हूं। and open up page number 5. Kinship सर ये स्पेशल नोट्स रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी। Kinship Stability Booklet, page number 5.
हाँ जी वंदना, आई एम इन phase 1 क्लास राइट नाउ. बोलो क्या बात है. अरे भाई मैं इतनी देर से क्लास ले रहा हूँ यार. आधे घंटे से क्लास ले रहा हूँ मैं. जरा देखो, चेक करो भाई, आधे घंटे से आई एम इन क्लास यार. या पेज नंबर क्या बोला? पेज नंबर 5. सर यहाँ पर कर्व दी हुई है. करेक्ट. मैं जरा शेयर कर रहा हूँ. Statistical stability. Yeah, let me just share with you. Let me know when you can see my screen. Yes, sir, visible. Visible. Okay. So we are now talking about the GZ curve of MV Hinship. Okay. Now we are talking about that. अब इसमें पेज नंबर 5 में क्या क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1. As this ship is required to comply with regulation 10(1) and 2 of the Load Line Convention 1966, the Government of India considers it important to ensure that in any sailing condition the stability complies at least with the following minimum criteria. Okay. अब ये जीजेड कर्व है. अगर कोई भी शिप, कार्गो शिप जिसे हम कहते हैं, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट है. इसको कहते हैं इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. तो इसमें ये दिया हुआ है, ये कर्व बना हुआ है, डायग्राम आपके पास सब कुछ है. ये आपके पास एग्जाम में पर्टिकुलर्स आपको दिए जाएंगे, तो ये डेटा आपके पास अवेलेबल होगा. ओके. तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एरिया अंडर द कर्व अप टू 30 डिग्रीज शुड नॉट बी लेस देन 0.055 मीटर रेडियन. मतलब 0 से 30 तक का जो एरिया है, ये वाला पार्ट, ये इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए. इससे ज्यादा होगी तो आई एम ओके टू सेल आउट. ये डिपार्चर कंडीशन मेरी होनी चाहिए बिफोर आई लीव एनी पोर्ट. मेरा कर्व इससे बेटर होना चाहिए बेसिकली. तो 0 से 30 तक का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? 0, 15, 30. करेक्ट. यस सर. 0, 15, 30. 0, 15, 30 h/3 इंटू SOP कर Yes, लूंगा. जो एरिया जो मेरी वैल्यू आएगी, सपोजिंग मेरी वो वैल्यू आई 1.2. Since 1.2 is greater than 0.055, hence criteria number alpha is okay, is met. समझ में आया? yes sir. Okay. अब ये कहता है ब्रावो, एरिया अंडर द कर्व अप टू x डिग्रीज, और x की नीचे आंसर दिया हुआ है 40 डिग्रीज और लेसर एंगल एट विच वाटर कुड एंटर द हल. Now, what is the angle at which the water can enter the hull? This angle is called as angle of flooding. थीटा f. इसको थीटा f कहते हैं, एंगल ऑफ फ्लडिंग या एंगल ऑफ डाउन फ्लडिंग भी कहते हैं. तो x की मेरी वैल्यू है 40 और थीटा f, राइट, विच एवर इज लेस. तो कहने का मतलब क्या है? सपोजिंग किसी क्वेश्चन में थीटा f is given as 42 degrees, then what will you read it as?
40 और 42 विच एवर इज लेस, यानी कि नहीं समझ आया ये मैं क्या बोल रहा 40 हूँ? डिग्री, We will read 40, तो sir. 40 डिग्री का Then you will read 40 x as 40. Supposing किसी क्वेश्चन में मैं आपको थीटा f देता हूँ 38, then 38, then 40 और 38 whichever is less, यानी कि 38. ये तो x की कहानी हो गई. अब मैं वापस ब्रावो पे जा रहा हूँ. एरिया अंडर द कर्व अप टू x, मतलब अगर 38 दिया हुआ है तो एरिया अंडर द कर्व अप टू 38 डिग्रीज. ओके, ये है मेरा 30, ये 40, 38 ये इसके पास आएगा यहाँ पे. तो ब्रावो विल बी बेसिकली ब्रावो इज 40 और x, ये उसका खेल है ये, डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ फ्लडिंग. सो उसका जो एरिया है मेरा 0.09 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता. फिर चार्ली इज ब्रावो माइनस अल्फा, दैट विल गिव मी एरिया बिटवीन 30 एंड x. तो ब्रावो माइनस अल्फा विल गिव मी चार्ली. दैट एरिया शुड बी more than 0.03. फिर एको. सर ये एरिया फ्लडिंग, सर ये एंगल ऑफ फ्लडिंग अपने दिया होता है क्या अपने हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स में? हाँ, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. हमारे अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया है, बट ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा. अगर यूज करना है तो दिया होगा. अच्छा, नहीं सर जहाज पे सर मतलब ये कहाँ होता है जहाज Yes, sir. पे, ये अपना हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स में होता है क्या? ये आपको दिया होता है हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स में, मतलब अलग अलग ड्राफ्ट पे? ये आपके समर ड्राफ्ट पे होता है. अच्छा, समर ड्राफ्ट पे आपको एंगल ऑफ फ्लडिंग दिया हुआ होगा. अब क्वेश्चन ये आ जाता है, एको की डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम जीजेड शुड अकर एट एन एंगल नॉट लेस देन 30, मतलब इससे पहले नहीं होना चाहिए मेरा मैक्सिमम जीजेड. यहां पे मेरा मैक्सिमम जीजेड मैं नोटिस करता हूं 45 के करीब आ रहा है, राइट? तो 30 से पहले नहीं होना चाहिए. अगर 30 से पहले होगा तो क्या हो जाएगा? माई कर्व विल राइज टू सून अर्ली एंड फॉल टू सून. माई वैनिशिंग विल बी टू अर्ली. ठीक है? एंड द मैक्सिमम जीजेड शुड अकर एटलीस्ट 0.2 मीटर्स होनी चाहिए. कब? 30 डिग्री पे. तीस डिग्री से पहले नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट 0.2 भी होनी चाहिए मेरी जब भी होगी. मैक्सिमम जीजेड टू अकर एट एन एंगल नॉट लेस देन 30, 30 से पहले नहीं होनी चाहिए और एटलीस्ट 0.2 भी होनी चाहिए जो मेरी मैक्सिमम जीजेड है जब भी होगी. ये पॉइंट नंबर एको का क्राइटेरिया है. एंड फॉक्सट्रॉट का क्राइटेरिया है इनिशियल जीएम टू बी नॉट लेस देन 0.15. और in order that the minimum required bow height is always maintained, forward draft should not exceed 11.211 meters. उसकी जो मिनिमम बाउ हाइट है वो मेंटेन होनी चाहिए, तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. ये रिक्वायरमेंट है जिसको हम कहते हैं इंटैक्ट स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट. सर बी पॉइंट कैन यू रिपीट सर, ये जो एंड में है 0.09? कौन सा वाला? ब्रावो सर, ब्रावो. ब्रावो, ब्रावो. ओके, ब्रावो को रिपीट करता हूँ. सो ब्रावो इज कनेक्टेड टू एक्स. अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या है?
40 degrees or angle of flooding, whichever is less. So supposing the angle of flooding is 38 degrees, then the 40 or 38, whichever is less, मतलब 38 यूज होगा यहाँ पे. If angle of flooding is 42, 40 or 42, whichever is less, तब यहाँ पे 40 यूज होगा. ये तो x की आ गई. Bravo is area up to x. Okay. That means Bravo चल रहा है area up to ये वाला एंगल, या तो ये 40 हो सकता है या ये 38 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ फ्लडिंग. अगर एंगल ऑफ फ्लडिंग 40 से ज्यादा है तो 40 यूज होगा. तो यहां से 0 to 40 एरिया कैसे निकालोगे? 0, 20, 40. अगर मैंने 0 to 38 का आपको एरिया निकालने को बोला तो कैसे निकालोगे? जीरो 38 19. करेक्ट. 0, 19, 38. बिल्कुल ठीक. ये समझ में आया? Yes, sir. So that Yes, is sir. that is what you'll do. You will find out the area up to that angle, whatever is the angle in question. Either it would be 38 or it would be 40. And sir, what is the 0.09 on the side of that one? This area value should be greater than 0.09. That means whatever area you'll find out, supposing 0, 19, 38, that value should be greater than 0.09 meter radian. Okay, sir. Okay, understood. So you'll find out the value. Supposing it comes 1.65, then you'll write 1.65. Since 1.65 is greater than 0.09, criteria number Bravo is met. Okay, sir. Understood. So each of these criteria together form what is called as, all these together form what is called as intact stability criteria. So this is for hinge ship or what? Because This is point for number any ship. 2, This is for any ship. Point number 2. कौन सा वाला? I cannot understand this. The draft should not exceed this much. ये इसका hinge ship के लिए है. ये hinge ship के लिए है. ठीक है सर. ये hinge ship के लिए. This is for hinge ship. जो ABC वाला है, that is for everything. Every sir. ship. Every ship. This is for every cargo ship. Your ship, my ship, everything. It should meet this criteria. So sir, how does the questions come, sir? मतलब कैसे frame करते questions? Okay. So the question now, let me unshare the screen first. Okay. All right. So basically, what IMO has done is, IMO has brought out one publication. स्टेबिलिटी बहुत है सेम है सर. हाँ जी, क्या हुआ? सर की इंटैक्ट स्टेबिलिटी जो है सर वो स्टैटिकल स्टेबिलिटी को भी बोलते हैं कि कोई दूसरी चीज है सर? हाँ, स्टैटिकल स्टेबिलिटी को बोलते हैं. सेम. ओके सर. So IMO's intact stability code 2008 is a publication. अब ये IMO ने निकाली है. जब भी कोई जहाज डूबता है तो IMO sits down, they need to investigate वो जहाज डूबा क्यों. Should not have, because the ship is supposed to remain afloat, come what may. So then they get into the act.
एंड देन दे फाइंड आउट कि क्यों वो शिप जो कि सर्वाइव करना चाहिए था, इट शुड हैव हैड इट्स ओन सर्वाइविंग capability, it should have survived. Why did it not survive? So because of that, so they found out that various ships require various criteria, right? So they found out that cargoes, grain cargo for example, is a peculiar cargo. वो शिफ्ट कर जाता है, फ्लूइड स्टेट में रहता है, मतलब बिहेव करता है. The grain, when carried in bulk, behaves like a liquid and therefore causes something known as a healing moment. Similarly, your timber cargo. The timber on deck acts like a freeboard and provides reserve buoyancy, additional reserve buoyancy. So that means I should be allowed to load more on these vessels, timber vessels. I should be allowed to submerge because I've got additional reserve buoyancy on the deck in the form of timber. Now, using that logic, think and tell me, answer this question. Do I have additional reserve buoyancy when I have containers on deck? Negatives. Why not? When timber I can have, and I can have an additional sinkage allowed by IMO because the timber on deck is being considered as providing me additional reserve buoyancy, and therefore my freeboard is allowed to be reduced. सर बिकॉज आई थिंक कंटेनर कैन बी हॉलो आल्सो, तो वो प्रोवाइड नहीं करेंगे ना उतना रिजर्व buoyancy. So using your logic, logs are also hollow. Sir, logs hollow? No, sir. But containers are sinkable and Sir, logs wooden. Okay, जिन लोगों ने logs Sir, नहीं this लोड किए हैं, तो logs को बता दूंगा आपको. There are two types of logs. Okay. This is known as a solid core. This is known as a hollow core. So वो sinkable, non-sinkable containers can sink. Okay. If water. Now drawing the same simile. These two fellows. So logs are of two types. They are called as floaters and they are called as sinkers. मैंने तो इस पे बहुत रिसर्च करी हुई है, क्योंकि एक जहाज पे मैं चला गया था एज ए सेकंड मेट. तो logs are two types, floaters and sinkers. Floaters, very interesting. Floaters are again of two types, solid core and hollow core. Similarly, sinkers are of two types, solid core and hollow core. So you, by the look of it, you can't make out that this log is a floater or a sinker. Can you believe it? Interesting, no? Yes, sir. Scary also. And very scary. Very scary. मतलब आए तो मैंने कहा ये क्या चीज है. Only these guys जो हैं, जो stevedores, they know कि जो floater है, floaters को they would वहां पे काट रहे होते हैं पेड़ जंगलों में and downstream छोड़ देते हैं, तो वो float करते हुए जहाज पे आ जाते हैं पास में. And they travel miles downstream. And जहाँ पे आपका जहाज है वो पास में आ रहे होते हैं, वो पकड़ के वो ऐसे वो मारता है हुक और पकड़ता रहता है और स्लिंग लगाता रहता है और जहाज पे लोड करते रहता है. तो फ्लोटर्स तो ऐसे हो जाते हैं. सिंकर्स जो होते हैं उनको कर नहीं सकते, तो सिंकर्स कम बाय ट्रक्स, बाय द ट्रॉलीज. So can't use your logic, what you are telling me about floaters and sinkers and comparing it to containers. But I'm coming back to my original question. My original question is, why is additional freeboard not provided to container ships?
Any idea? सर रैना सर ने बताया they भी था are क्लास में, भूल गए सर। भूल गए? चलो फिर Sir, वापस they जाओ are कार्गो। सर इट कैन बी बताया है सर उन्होंने। सारे कंटेनर्स अलग अलग तरीके के होंगे, so they will not be uniform in nature, but logs are uniform in nature, so नहीं. Your basically your container ships, na, your containers is not a compact store. It's not a one unit. It's not one unit. These are several separate units. It is not one complete thing, right from forward to aft. No. So therefore, they are not providing you any reserve buoyancy to the ship. On the contrary, they are acting like a windage area, and your vessel is subjected to wind, and therefore they provide that resistance. And your vessel can therefore, a container ship can consequently get affected by that wind and heel over. So the stability, on the contrary, is reduced on these vessels. So you have the severe, what is called as the severe wind and heeling criteria. Wind and weather criteria, they're called. So in these ships, that acts. But timber ship, on the other hand, the entire stow on the top deck, it is attached to the ship, wound up, and made into one stow. It is not into pieces. It is not into bays and tiers. मतलब सर कंटेनर्स में कंटिन्यूस बॉडी नहीं होती कंपैरिजन टू टिम्बर्स। करेक्ट। ओके। कंटिन्यूस बॉडी नहीं होती, और एंड उसमें बेज एंड टियर्स होते हैं। तो एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल बे एंड इंडिविजुअल टियर्स आर टुगेदर। सर बट लकड़ी है सर, लकड़ी फ्लोट करती है, इसलिए इसको मतलब अपन कहते हैं कि उसको टिम्बर फीवोर्ड दिया हुआ है, क्योंकि लकड़ी है, वो लकड़ी फ्लोट ही करेगी। लेकिन सर ये कंटेनर फ्लोट नहीं करेंगे, मतलब वो डूब जाएंगे, तो इस वजह से उनको नहीं दिया है ये फ्रीबोर्ड। करेक्ट, बट बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ना, स्टो सर बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट सर स्टोरेज। अगर मैं लकड़ी कोई अलग अलग मतलब अगर मैं रख दूं तो अगर मैं ऐसा एक कंटेनर लगा दूं, ऐसा इमेजिनरी कंटेनर फॉरवर्ड से चलता हुआ आ रहा है और पीछे तक आ रहा है कंप्लीटली, इट कैन बी फ्लोट आल्सो। क्या हुआ? So what I'm trying to say is, IMO ने ये जो इंटैक्ट स्टेबिलिटी कोड में ये मिनिमम स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कार्गो शिप्स have been given. And similarly, they have given it for other types of ships also. They have given for container ships. They have given for timber, for grain, for fishing vessels, for various types of ships. They have given. सर अभी आपने कहा था ना कि ये अपने कंटेनर शिप के लिए सीवियर विंड एंड द रोलिंग क्राइटेरिया होता है, तो वो सर टिम्बर शिप पे भी होगा? वो तो टिम्बर में भी मतलब विंड एरिया ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो वो उनके लिए भी है। ऑल शिप्स all the ships which have a windage and this thing, that will be applicable to them. तो सर उसका आंसर क्या होगा सर, जो आपने मतलब क्वेश्चन पूछा था ना कि इफ द कैरिंग टिम्बर कार्गो देन इट सेज द मतलब रिजर्व बायोंसी है, और कंटेनर को अगर कैरी कर रहे हैं तो नहीं है, तो उसका आंसर क्या देंगे हम कि कंटेनर मतलब बेर और टियर में रखे जाते हैं, तो कॉम्पैक्ट कार्गो नहीं है इस वजह। बिल्कुल, दैट्स राइट। ओके,
It is not into a one compact unit. Whereas your logs are all compacted into one unit. ओके सर। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया जो A to F थे वो सब ये मिनिमम स्टेबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। इसमें बेसिकली IMO ये कोशिश कर रहा है कि मेरा जो जहाज है कोई भी जब सेल आउट करे तो ये ऐसा उसका जीजेड कर्व नहीं बनना चाहिए। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट डिजायर्ड। क्यों? क्योंकि इस कर्व की जो GM है, इसका टेंजेंट बहुत नीचे जाएगा, इसकी GM बहुत कम होगी। कौन से जहाज की GM बहुत कम होती है? टेंडर। तो ये टेंडर हो गया, टेंडर। ये टेंडर हो गया। सिमिलरली कोई जहाज ये नहीं होना चाहिए उसका जीजेड कर्व, मतलब GM इतनी ऊंची है। ये कौन सा है? स्टिफ। 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 ये स्टिफ हो गया। तो ये भी डिजायरेबल नहीं है, ये भी डिजायरेबल नहीं है, ये भी डिजायरेबल नहीं है, दोनों डिजायरेबल नहीं है। व्हाट इज डिजायरेबल? डिजायरेबल इज बेल शेप्ड, जिसको हमने एक नाम दे दिया T1। T1 ये डिजायरेबल है। तो ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो बेसिकली इंश्योर ये करता है कि जहाज बेल शेप बने T1 ऑन डिपार्चर पोर्ट, ना स्टिफ हो ना टेंडर हो। बिकॉज अगर मेरा जहाज स्टिफ होगा तो वो 5 या 6 कैटेगरी जो क्राइटेरियाज हैं वो नहीं मीट करेगा, कहीं ना कहीं पे फॉल्टर करेगा। सिमिलरली जब टेंडर होगा तो भी फॉल्टर करेगा। तो आई शुड ऑन डिपार्चर मीट दिस क्राइटेरिया, द बेल शेप T1 criteria which is given in provided there, वो मिनिमम है। दैट इज द रिलेशनशिप। ये समझ में आया रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस? सर। हाँ जी सर ये जहाज को सर स्टिफ या टेंडर सर मतलब सर वो तो जब मतलब कंस्ट्रक्शन होके आता होगा तभी मतलब आता होगा मतलब बन के अपन तो नहीं। मतलब फुल कार्गो करेंगे लोड, फुल हेलो कार्गो हेलो कर हेलो लेंगे लोड। हेलो 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 हाँ। एक मिनट। जहाज तो बन के आया था, लाइट शिप में था। हाँ अब सर। उसमें आपने सडनली आपने डाल दिया स्टील कॉइल्स या आयरन ओर, हाई डेंसिटी कार्गो है, हाँ उस केस में हो जाएगा। राइट। अब आपका जहाज जो है आपकी केजी तो बहुत लो हुई, आपका GM बहुत हाई हो गया, तो आपका जो जीजेड कर्व बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा? ये वाला बनेगा। बड़ा वाला। स्टिफ वाला। स्टिफ वाला। अब वो स्टिफ वाला बनेगा तो क्या आप वो 5-6 क्राइटेरियाज मीट करोगे पेज 5 वाले? नो। नहीं। मीट करोगे तो दैट मींस यू कांट डिपॉजिट, सेल आउट नहीं कर सकते ना। सर लेकिन टैंकर्स पे से ऐसा नहीं होगा ना, टैंकर्स पे तो मतलब कितना ही मतलब कर लो फुल लोड तो भी नहीं हो पाएगा। Tankers, I don't have that problem because on tankers I've got homogeneous cargo, हाँ right? My weight is homogeneously spread, तो मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है। टैंकर में मेरी खाली एक ही समस्या है, वो है फ्री सरफेस का, वो मुझे संभालना है। यस सर। तो मेरे को खाली सो लॉन्ग एज मैं फ्री सरफेस को संभाल लूं, आई एम ओके। दैट इज माय ओनली तकलीफ इन टैंकर। Yes, so best ships in case of stability. So stability wise I have got no issues ever. और टैंकर में मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है। और वो फ्री सरफेस को भी डिवाइड, उसको भी मिनिमाइज करने के लिए वो मेरे पास एक क्रॉस टैंक्स हैं या विंग टैंक्स हैं, आई एम डिवाइडेड, तो इसलिए मेरी फ्री सरफेस वैसे ही 1/4 हो गई या 1/9 हो गई।
Yes, sir. So tankers, I have no issues at all. My problem is only in the dry run, Bulk carrier. bulk और any other cargo, कुछ भी हो, वहां पे मेरी तकलीफें हैं. And sir, tender का सर एग्जांपल सर टेंडर का. Tender ka is basically your container ships where I have loaded empties under deck and all FCL cargo on the top deck. Heavy on top. All my full container loads are on the top. All my empties are in the under deck spaces. I've got a problem. Yeah. My kg is high. My GM is low. I am a tender vessel. So examples are container ships with such cargoes, or can be passenger ships. Can be ro-ros. सर GM जितना बड़ा उतना ही बड़ा will be the GZ, no sir? GM जितना बड़ा उतना ही the GZ curve will rise too early too soon. Okay sir, okay. The GZ curve will rise too early too soon. Because the tangent to that will be very high. तो ये सर इसका टेंजेंट है 57.3, तो उससे भी आगे निकल जाएगा. हाँ 57.3 पे वर्टिकल होगी परपेंडिकुलर. टेंजेंट जाएगा ऐसे, जहां पे दोनों मिलेंगे वो लेफ्ट जाएगा, वो मेरे को GM देगा. यस सर. GM इनिशियल. GM इनिशियल देगा मुझे. सर ये जो T1 कर्व हम की वैल्यूज हम अचीव करते हैं, they will be always more than the minimum required values which are they should be given in the particulars. They should be. Then only can I sail out. If they are not, then I need to redistribute my cargo. Achieve more better curve. Correct. Okay. So I should achieve that. Then only can I depart. ठीक है सर. तो बेसिकली मेरा जो लोडिकेटर है, मेरा काम लोडिकेटर क्या करता है, मुझे फटाफट निकाल के दे देता है. That's what my loadicator does. And उसमें वो एक टेस्ट होता है, तो उसमें you can put that and that will give you कि are you meeting the intact stability criteria or not. वो उसमें वो punch करके then you can get that. Yes, you are meeting the criteria. That is the printout which you take out. तो इसमें लिखा था, तो इसमें आपने लिखाया था कि चीफ ऑफिसर हैज टू ड्रॉ द कर्व. तो वो सब उसमें सब मतलब जो प्रिंट आउट आएगा सब वो भी चलेगा ना, अब ड्रॉ करने की जरूरत तो है नहीं. हाँ आजकल हम नहीं करते हैं. Earlier days we used to do it. हमें बनाना पड़ता था मैन्युअली. हम मैन्युअली बना के बैठ के बनाते थे हम लोग. ओके. राइट. बट आजकल आप प्रिंट आउट ले लेते हो सीधा फटाफट. तो प्रिंट आउट लेके 3 कॉपीज उसकी प्रिंट आउट लेते हो. एक अपनी फाइल में जाती है, एक one you are supposed to send to the charterer and one you are supposed to send to your DPA. Saying that you met on departure, you were meeting the criteria. The intact stability. तो ये important है, ये मेट का जॉब है. ठीक है, is that okay? सर रियली ऐसा करते हैं? हमेशा ऐसे करते हुए नहीं देखा सर. हाँ एवरी डिपार्चर पोर्ट एवरी वॉयज में करोगे आप. ये सर बीपीसी ऑपरेशंस पर चला जाता है स्टेबिलिटी. हाँ तो वो जाता है सर, ईमेल सेंड करते हैं सर कैप्टन सर, ईमेल सेंड करते हैं. बिल्कुल. उसमें ना चार्टर को और अपने एमटेक को मतलब जाता है, मतलब कंपनी को ऑपरेशन डिपार्टमेंट पे चला जाता है. हाँ, you're supposed to send because there's a requirement that you need to send to your DPA. There's a requirement. Okay. There's a requirement on that. So it's one of the important duties of a master. So what you do as a mate is you take out a printout,
फाइनल डिपार्चर पोर्ट जी जी रेडी हो चुके हो, सब कुछ हो गया है, सब कुछ अब आप ठीक है निकालोगे। सर, वो पूरा 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 लोडिंग कंडीशन डिपार्चर कंडीशन का प्रिंट आउट आता है, उसमें 6-7 पेजेस होते हैं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। जी 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 तो उसके सही। 3 सेट होते हैं। एक सेट आपकी अपनी फाइल में जाता है, एक सेट चार्टर को जाता है, एक सेट डीपीए को जाता है, या ओनर को, या जिसको भी आप कहते हो। यस सर यस, वो हम अपने कंपनी में ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड कर देते थे सर, तो वहीं से हो बिल्कुल ठीक, जाता था access। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है सर। So that's how it is. That's the importance of it. ठीक है, चलो, see you tomorrow then. कल करेंगे Hinship. So we'll start with KN curves tomorrow. Okay? All right, चलो. इसके सर कुछ क्वेश्चंस करने हो तो इसके कुछ प्रैक्टिस करने हो तो Now you can start off with past papers. Start with past papers. Yeah, please start. A ship. Don't touch Hinship. Okay. So, start with A ship. Okay. Chalo. See you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Happy Diwali. Happy Diwali to all of you. Thanks. Happy Diwali.